Good evening, all of you. Uh, Hello, everyone. Let's welcome to this channel, Think GS with Taj. I'm Razik Taj, and welcome to this channel. See, if you prepare for various government examinations like UPSC, State PCS, or SSC, CAPF, or any other examination, you have to mastering the concepts like history, geography, polity, economics, general science, current affairs, ancient history, medieval history. So that when the basic concepts, if you dive into the deeper, then you will get nothing. Okay. So in order to know the basic concepts, we have to uh, clear the basic concept and we have to know about the concept in our fingertips. So there are various complex concepts in polity, history, geography itself. So if you know the basic concepts, we are ready enough to tackle the complex concepts and solve the questions and get S with these examinations. Here I am simplifying the complex concepts. Being an aspirant, I know what are the complex situations you are going to face in these examinations, in these subjects. So here I am simplifying the complex concepts and I can share some example focus tricks and previous year questions and some techniques. So you uh, feel comfortable to tackle the questions and ace the examination in future. So these learnings becomes easy and effective for you if you are learning in this channel and if you are preparing for any government examinations. So without any delay, let's start and you trust your learning partner. Let's get started. Think Jace with Taj. So the basic concepts, when you know about the basic concepts, we are going to start from the basic concepts of polity. Okay. So basic concepts of polity. When you know about the basic concepts of polity, you have to know what do you mean by nation, what do you mean by state, what do you mean by nation, what do you mean by state, what do you mean by territory, what do you mean by country, then what do you mean by constitutions, what do you mean by constitutionalism, what is a constitutional government, what is a non-constitutional government, what is a federal government, what is a unitary government, what is a confederate government. So these are the some basic concepts of polity we have to know. So we are now going to start from the first concept, that is concept one. What do you mean by nation? What do you mean by state? And what is a nation state? Okay, so this is the concept we have to know. See, I can start with a story so you are comfortable to understand what do you mean by nation and what do you mean by state. Let's do that immediately. Let's start the story. There is a village. Okay, this village named Earth. Okay, this Earth. There are two brothers are lived here. I am explaining Hindi so that we are very much comfortable know the concept in a faster way. देखिए, एक विलेज है जहाँ पे दो लोगों को असाइन किया गया था कि विलेजर्स कैसे रहें. ठीक है, एक विलेजर्स है जहाँ पे दो लोग रहते थे. एक रहता था नेशन और एक विलेजर्स का नाम था स्टेट. इन दोनों का रोल था कि कैसे एक तो विलेज को स्मूथली रनिंग करे. ठीक है, स्मूथली रनिंग करे, कैसे विलेजेस को स्मूथली रनिंग करे. सो इन दोनों का ड्यूटी था. सो नेशन का आइडियोलॉजी जो था विलेज को टू रन स्मूथली टू द विलेज, द नेशंस आइडियोलॉजी वाज टू बीइंग द इमोशनल. ओके, सो नेशन ने क्या किया, इमोशनली हैंडल करने को सोचा, विलेजर्स को इमोशनली हैंडल करने को सोचा. सो जो इमोशनली हैंडल करने को सोचा, तो ये क्या चाहता था, एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स लाना विलेज के अंदर. विलेज के अंदर एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स लाना, एक तो यूनिटी लाना, तो इंटीग्रिटी लाना, सो दैट विलेज क्या हुआ, एक तो स्मूथली रनिंग हो सके विलेज. So he loved the folk songs, he loved the dances, he loved the festivals, he knows the village folk, he knows the village food. उसे विलेज का सब कुछ पसंद था. तो ये इमोशनली लोगों को बांध के रखने के लिए ट्राई किया. उसमें ये सफल भी हुआ. तो बीइंग इमोशनल वन,
nation believed that the sense of belongings is more important and same identity is more important, so that the village ran too smoothly. स्टेट ने ट्राई किया बीइंग प्रैक्टिकल वन। दोस्तों तो स्टेट का आइडियोलॉजी था बीइंग प्रैक्टिकल वन। बीइंग प्रैक्टिकल वन का मतलब क्या था कि इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग एब्सेंट है, इसमें इमोशनल टोन एब्सेंट है। इसमें वो क्या किया, अपने विलेज को टू रन स्मूथली उसने क्या किया कि लॉ एंड ऑर्डर रेडी किया। तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर रेडी किया। उसने ये बताया कि हाउ टू रन द स्कूल, how to run the police station, how to run the land, how to run the people who punish the law, break the law, how to resolve a dispute। तो इसने ये किया। तो स्टेट बीइंग प्रैक्टिकल इनफ उसने क्या किया कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए, अपने विलेज को कैसे स्मूथली रनिंग कर सके, इसलिए इसने लॉ एंड ऑर्डर बनाए, रूल ऑफ लॉ बनाए। इसने कुछ अपने नाम में कुछ संविधान बनाया कि ये सब हो सकता है विलेज में, ये सब नहीं हो सकता है, तो इस तरह से चला। सो इन ए नर्सल क्या हुआ कि नेशन और स्टेट दोनों का जो आइडियोलॉजी था बीइंग इमोशनल वन एंड बीइंग प्रैक्टिकल वन, ये दोनों व्हेन दे कंबाइन टुगेदर द विलेज रन स्मूथली। क्योंकि एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग था तो लोगों के बीच में एक तो यूनिटी था, और लॉ एंड ऑर्डर भी थे तो विलेज भी स्मूथली रन किया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद नेशन ने डिसाइड किया टू सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। सो नेशन जब सेपरेट हुआ, इसने ट्राई किया कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर से। लॉ एंड ऑर्डर से कुछ नहीं होता, सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहेगा, लोगों के बीच में यूनिटी रहेगा, लोगों के बीच में इमोशनल रहेगा, तभी जाके विलेज स्मूथली रन हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। तो इसने ये डिसाइड किया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ये रियलाइज़ किया कि लोग फेस्टिवल में आए, लोग फेस्टिवल में खाए, लोग फेस्टिवल में गाना गाए, लोग फेस्टिवल में रहे। लेकिन जब भी एक तो डिस्प्यूट होता था, जब भी कोई एक तो डिस्प्यूट होता था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता था, तो सॉल्व भी नहीं हो पाता था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट के अंडर में जाता था। तो अगर स्टेट यहाँ से सेपरेट हो गया है तो देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। सो ये जो डिस्प्यूट हो रहा था इसका कोई रिजल्ट नहीं था, तो केस मचने लगे। उसी तरीके से स्टेट में क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पहले से थे, लैंड पहले से था, टेरिटोरी पहले से था, सब कुछ था, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स नहीं था। तो एक फेस्टिवल होता था तो लोग आते ही नहीं थे, क्योंकि एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं था, एक तो यूनिटी नहीं था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे भी केओस हो रहा है, यहाँ पे भी केओस हो रहा है, तो कुछ तो एब्सेंट है। सो दोनों ने लास्ट में डिसाइड किया कि नेशन जो पहले आइडियोलॉजी था कि उसने ये डिसाइड किया कि फीलिंग एलोन इज नॉट एनफ, फीलिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज नॉट एनफ, पीपल नीड लॉ एंड ऑर्डर। ये नेशन ने रियलाइज किया। उसी तरीके से स्टेट ने रियलाइज किया कि पावर एंड लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट एनफ, इट्स जस्ट एम्प्टी without sense of belongings। सो दोनों ने लास्ट में ये रियलाइज किया कि दोनों का जरूरत है इन ऑर्डर टू रन द विलेज स्मूथली। सो हियर माय पॉइंट इज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नेशन एंड स्टेट्स आर टू इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, नेशन जो है एक तो इनटेंजिबल थिंग है। जो नेशन है हमने देखा ये बेसिकली क्या रिलाई करता है, तो इमोशनली टोन रिलाई करता है, जो कि इंटेंजिबल है, उसे हम छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, वी ओनली परसीव्ड इन आवर थॉट्स। ओके, इट्स ओनली परसीव्ड इन थॉट्स, इट इज इंटेंजिबल, इट्स इंटेंजिबल। बल्कि जो स्टेट है वो टेंजिबल एनफ है, और स्टेट जब रहता है तो वो फिजिकल एट्रीब्यूट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। स्टेट के अंदर एक तो लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे रन करना है, कैसे सब कुछ स्मूथली रनिंग करना है, उसके अंदर ये है। तो नेशन और स्टेट दोनों डाइवर्स लेकिन एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है। तो नेशन के बिना स्टेट नहीं है, स्टेट के बिना नेशन नहीं है, लेकिन हम आगे जाके इसके कुछ रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो माई पॉइंट इज दैट इज वेरी क्लियर, द नेशन एंड स्टेट आर टू इंटीग्रेटेड टॉपिक्स, but they need to be studied and they need to be lived to work together in order to bring the harmony.
बिकॉज व्हाट वी कॉल ए नेशन स्टेट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए नेशन स्टेट। क्योंकि नेशन के बिना स्टेट जो है केयोटिक है, स्टेट के बिना नेशन जो है केयोटिक है। सो दैट इज द मोरल प्रिंसिपल ऑफ द नेशन एंड द स्टेट। ओके, एक और एक एग्जांपल लेते हैं। इफ दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू, लेट्स से अनदर एग्जांपल। पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट मैच से। देखिए, वी आर बीइंग ए क्रिकेट फैन, आपको धोनी पसंद है या आपको कोहली पसंद है, क्या आपको और कोई भी क्रिकेटर पसंद हो सकता है, ये आपके चॉइस के ऊपर है। लेट्स कंसिडर एम एस धोनी। ओके, एम एस धोनी हियर। सो बीइंग ए क्रिकेट फैन, आपको एम एस धोनी को देखना अच्छा लगता है। इट्स परफॉर्मिंग इन वर्ल्ड कप 2011, इट्स परफॉर्मिंग इन वर्ल्ड कप 2015, इट्स परफॉर्मिंग वर्ल्ड कप 2019 एंड आफ्टर दैट ही रिटायर्ड। ओके, सो हमारा एक तो इमोशनल टोन सेट हो गया था कि एम एस धोनी के ऊपर कि जब भी खेले इसका सक्सेस में पर्सनली सक्सेस की तरह फील होता था। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एम एस धोनी के साथ हमारा जुड़ गया था। तो जब भी ये क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम उसको जब देखते हैं तो हमारे लिए एक तो सॉफ्ट करना रहता है, हमारे अंदर एक तो सेंस ऑफ इमोशनल बीइंग रहता है कि एम एस धोनी खेल रहे हैं, कि एम एस धोनी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द नेशन। नेशन एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, तो सेंस ऑफ इमोशनल बीइंग है, एक तो इंटेंजिबल थिंग है। इट इज ओनली परसिव्ड इन आवर थॉट्स, वी कैन नॉट टच इट, वी हैव टू फील इट। नेशन इज हैव टू बी फील इट। लेकिन वहीं पे स्टेट देखिए क्या है। एम एस धोनी किसके अंडर खेल रहे हैं? इंडिया के अंडर। इंडिया में क्या है? बीसीसीआई है, जो कि क्रिकेट को रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीसीआई होता है स्टेट, जो कि गेम को स्मूथली रनिंग करता है, जो कि स्टेडियम में टिकट अलर्ट करता है, तब जाके हम एम एस धोनी को देख पाते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है क्रिकेट के रूल्स के अंदर, सो दैट हम जाके एम एस धोनी को अच्छे से खेलते हुए देख पाते हैं। तो without being state, without being the stadium, without being the ticket allocation, without being the people, without being the fans, MS Dhoni is not present. Okay, if MS Dhoni have to be present, there need to be BCCI, there need to be Indian team, there need to be Indian cricket team in order to run smoothly, in order to know the cricket very well. So this is the concept of Indian nation and the state. Nation जो है एक तो इमोशनल सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और स्टेट जो है जो इसे स्मूथली रनिंग करता है। जब नेशन एंड स्टेट दोनों मिलते हैं, जब बीसीसीआई और एमएस धोनी जब मिलते हैं, तब हम आईपीएल का मजा ले पाते हैं, तब हम क्रिकेट का मजा ले पाते हैं, तब हम क्रिकेट को एंजॉय कर पाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन से नेशन एंड स्टेट बोथ एग्जिस्ट और म्यूचुअली कोएग्जिस्ट टुगेदर। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू स्लाइड, सो you can know the you know the concept very well. Okay, I have to now prepare a slide for you. So in that slide I also know the concept very well, and we can further proceed about the relationship between the nation and the state. Okay, see this slide. See, this is the slide. There is a definition of nation. Okay, where is the definition of nation? Please forgive me, this is my first video, that's why I am not much comfortable in the open view. Okay, see, so see, the nation's definition is here. What is written? See, this is now easy for you. Okay, you know the definitions also. So nation is a group of people united by common identity. मैंने पहले भी बोला था, we have to know the sense of belonging, we have to have the common unity, common integrity, common identity. So nation is a group of people united by common identity, language, whether it is by language, whether it is by culture, whether it be history, whether it be ethnicity, और शेयर एस्पिरेशन। आपके अंदर कोई लैंग्वेज रहा तो उसमें भी नेशन, लेट्स से वी आर द ओडियास। ओके, वी आर कंफर्टेबल इन ओडिया लैंग्वेज। सो जो भी हम जब भी बाहर जाते हैं, जब एक तो लोग को देखते हैं उड़िया बोलता है, तो हमारे अंदर एक तो सेंस ऑफ फीलिंग्स आता है कि वाह ये भी उड़ीसा से है, ये भी उड़ीसा से बिलोंग करता है। इसी तरह जब भी हम इंडिया से बाहर जाते हैं, कोई हमको इंडियंस मिल जाता है, तो हमको ये लगता है ओ वाह देयर इज ए इंडियन। सो हमें एक तो सेंस ऑफ फीलिंग्स आता है। तो नेशन वही है, तो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, तो सेंस ऑफ कॉमन फीलिंग्स। ओके, पहले ही बोला है ये तो इंटेंजिबल थिंग है, यू हैव टू फील इट, यू डोंट टच इट,
We have to feel it and we have to perceive it in our thoughts. Okay. So nation is a group of people united by common identity, language, culture, history. Maybe it's a language. अभी मैं example दिया ओडिया का. Maybe it's a culture. If we followed a culture like we Muslims in Eid. So whenever you see any Muslim in all over the world, we have a common sense of nation. We have a common sense of nation, sense of belongings. Okay. Let's say on history, we are the Indians. We know the freedom fighters Mahatma Gandhi. So to take Mahatma Gandhi, we have shared some different ideology, different thoughts. Okay, Mahatma Gandhi is our freedom fighter. Mahatma Gandhi is the father of our nation. So it हो common sense of belongings हम carry करते हैं. Language हो, culture हो, history हो, ethnicity हो, shared aspiration हो. Whereas the state is a political and legal organism. अभी मैं बोला कि जो फिजिकल एग्जिस्ट करता है, which having the boundary, which having a rule of law, which having a law and order issue. ठीक है. So state is being political or legal organism with a defined territory. Now I am explaining what that is. It is a defined territory, it's a defined population, government, and sovereignty. Okay, this is the organization and legal authority. So in a nutshell, you can say if you face the MCQs like please, yes, the nation is what? If there is MCQ, you can say it is the emotional and cultural unity. It is intangible. Point number one. And the state is the organization and legal authority. Point number two. So there is now see there is some relationship exist between the nation and the state. See, if it is nation, if it is the state, okay. If there is a state, let's say there, let's say uh, let's say this is the nation, this is the state, okay. There is some relation, okay. When this nation became this state, okay. When this is the nation and this is the state, okay. When these nations become this state, that means the law and order, the rule of law, the defined territory, the defined population, belonging is a strong sense of belongings. Okay, belonging a strong sense of brotherhood, strong sense of identity, strong sense of cultural identity, strong sense of political aspirations. Then the nation became a nation state. Okay, so this is followed in Japan. Okay, in case of Japan, that is this is the nation and this is the state. Okay, then there is one nation. See, then there is you can say then there is this is the nation. Sorry, I'm new to the open book, that's why I faced the issue. Okay, see, if this is the nation, if this is the state, in case of Japan, what we see, in case of Japan, nation and state is coexisted together. So in case of जापान हम जानते हैं कि जापान में लोग बहुत जिम्मेदारियां हैं. जापान के लोग बहुत एक तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ यूनिटी कैरी करते हैं. दैट्स बिकॉज द जापान इज ए स्टेट उस नेशन एंड स्टेट म्यूचुअल कोएग्जिस्टेड. ओके, फिर हम देखते हैं तो स्टेट, इस स्टेट का नाम क्या है? लेट्स से इट इज इंडिया. इंडिया में क्या होता है कि उड़िया भी रहते हैं, बंगाल भी रहते हैं, राजस्थानी में राजस्थान लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोग रहते हैं. तो यहाँ पे वेरियस रिलीजियस, वेरियस कल्चर, वेरियस ब्रदरहुड, वेरियस आइडेंटिटी देखने को मिलती है. राजस्थान है और राजस्थानी को पसंद करते हैं, उड़िया है उड़िया को पसंद करते हैं. सो देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया. दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. ओके, सो इंडिया के अंदर वेरियस थॉट्स बिलोंग करते हैं. इंडिया के अंदर वेरियस क्या बिलोंग करते हैं? वेरियस थॉट्स बिलोंग करते हैं.
let's say this is the Odias, this is the Tamils, this is the Telugu, this is the Malayalams. So एक स्टेट के अंदर इंडिया तो डिफेंड टेरिटरी है, इंडिया के अंदर एक डिफेंड पॉपुलेशन है, इंडिया का रूल एंड लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है. सो दिस इज द स्टेट. इसके अंदर एक ठो क्या होता है कि वेरियस नेशन बिलोंग करते हैं. वेरियस नेशन मतलब वेरियस थॉट्स बिलोंग करते हैं. सो इंडिया इज ए वन स्टेट बट मल्टी नेशंस. ओके, सो इंडिया का रिलेशनशिप क्या है इससे? दिस इज द स्टेट, इसके अंदर वेरियस नेशन बिलोंग करते हैं. ये कहाँ पे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है इंडिया में. ये लिखा जाता है कहाँ पे? ये लिखा जाता है इंडिया में. और कहाँ पे लिखा जा सकता है? सी. नाउ देखिए, अभी हम देखेंगे कि नेशन विदाउट स्टेट हो पाता है कि नहीं. क्योंकि ये अगर एक तो नेशन है, इसके अंदर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे हो सकता है कि मतलब आप ये सोचिए कि लेट्स से दिस इज अ नेशन. ओके, एंड देयर इज नो स्टेट. ओके, मतलब लोगों के पास एक तो फीलिंग्स है, एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हम एकजुट रहेंगे, मिलके रहेंगे, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकली डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, उनके पास एक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. तो ये भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि रियल वर्ल्ड में? यस, रियल वर्ल्ड में दिस रिलेशनशिप ऑल्सो एग्जिस्ट. वेयर? देखिए, हम पैलेस्टाइनियन को देख सकते हैं, उनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसराइल के साथ हमेशा लड़ाई होती रहती है. तो उनके पास एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हम हमारा देश लेके रहेंगे. इसराइली भी है, नेशन विदाउट स्टेट. उनके पास भी ये फीलिंग्स है कि हमारे पास. सी, तो इफ यू नो द हिस्ट्री अबाउट इसराइल एंड पैलेस्टाइन्स, दोनों के पास कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं था. दोनों ने एक जगह चूज किया. इफ दीज आर इसराइल्स, दीज आर पैलेस्टाइन्स, दोनों ने एक तो जगह चूज किया, क्लेम करने लगे ये हमारा है, ये हमारा है. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन. दोनों एक तो नेशन थे. नेशन मतलब क्या था? दोनों के पास एक तो थॉट था, एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग था. हम इसराइली हैं, हम पैलेस्टाइन है, हम एक तो टेरिटरी लेके रहेंगे. So these are having some thoughts carrying people, but there is no rule of law, there is no defined population, there is no defined territory. So they now claiming this is our Israel, this is our Palestine. So that is the reason why there is always dispute between the Israel and Palestinians, because this is a nation without a state. Okay. Now we are thinking, एक तो स्टेट विदाउट नेशन हो सकता है कि? क्योंकि एक तो स्टेट होगा जिसमें कुछ लोग रूल ऑफ लॉ डिसाइड कर देंगे, डिफाइंड टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, लेकिन लेकिन उनके अंदर कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है. ये मैं उसका एग्जांपल पहले स्टोरी में दिया था कि एक तो स्टेट है लेकिन इसके अंदर कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, सिर्फ एक तो लोअर लॉ एंड ऑर्डर है, एक तो डिफाइंड पॉपुलेशन है, एक तो आइलैंड तरह है जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसमें कोई रूल नहीं है, जिसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है. लेकिन सॉरी, जिसके अंदर रूल है, रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफाइंड टेरिटरी है, उनका एक तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, लोगों के तो थॉट नहीं है कि हम एक तो नेशन बियरिंग पीपुल हैं. तो इससे सा कोई एग्जिस्ट करता है? रियल वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन अनसेट एम्पायर्स, कॉलोनियल स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता था. सो इन अ नॉटसेल, इफ यू कैन से in a summary, if you can see this become lengthy, but I'm trying to mock up in a simple way. Okay, you can skip the video into 2x or whatever you are comfortable with the speed, and watch the video. Okay, so if you can not say if you can not see one relationship is nation being the state. This is the case of Japan. Into that is a state having multiple nations. Okay, Tamil, Telugus, Malayalams, these are the sense of thinking. When you go to the outside Indians, we see when we see an Indians, we are feeling the same sense of unity. That's why these are the various nations. That's it's like a thought. Okay, so this is the state, and then various nations have existed, like in India, Australia. These things have existed. Then 3, nation without being state. एक तो थॉट है हमारे पास, लेकिन देयर इज नो रूल, नो डिफाइंड पॉपुलेशन, नो डिफाइंड रूल ऑफ लॉ.
ये थॉट को लेके हम चलते हैं कि कोई हमें रूल एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर दे दे, कोई हमें रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड कर दे, तो हम कोई हमारा एक तो डिफाइंड टेरिटरी हो, इसके लिए लड़ते हैं आज तक कौन? पैलेस्टाइन्स, इसराइल्स। देयर इज द फोर्थ रिलेशनशिप, state without being nation. There is nation is absent here. Nation is absent here. This is existed in ancient Roman empires. Okay, so these are the four relationship. In a nutshell, you can say the relationship between the nation and the state. So I hope this concept is clear to you. The nation and the state. Okay. Now we can go to the another concept, like the concept number two. What do you mean by institutions? Okay. And what do you mean by institutionalization? Okay. Okay. Now we are going to start the second concept, that is what do you mean by territory and what do you mean by country. So these are two concepts. What do you mean by territory and what do you mean by country? Okay. Please. Okay. What do you mean by territory and what do you mean by country? Okay. See. See. When you discuss about uh, territory and the country, see, if we discuss about the territory, territory having a specific geographical area of land. Okay. If you consider the territory, this is having a specific geographical land. Okay. Maybe it is a water body, maybe it is a land body, maybe it is a maritime zone अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ए कंट्रोल ऑफ ए रूलर। ये क्या होता है कि ऐसे मान के चलिए, सिंपल लेमन तरीके से मैं समझाता हूँ। टेरिटोरी क्या होता है? जिसके पास एक जोग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है, जोग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है, लेकिन इट इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ए रूलर, स्टेट और अथॉरिटी। ये किसी एक तो स्टेट, अथॉरिटी और रूलर के अंदर ही रहता है।